So we'll continue where we left in last class. So we're discussing, okay, how to do small signal analysis. Okay, especially we are only focusing on common emitter configuration. Okay, so we have done when there is a fixed bias. Okay, that fixed bias circuit, how can we deal with a small signal analysis? Now we are taking another circuit, voltage divider. Okay, so voltage divider bias. So all of you know what is voltage divider bias. In voltage divider bias, we divide the voltage, okay, by allowing two resistances. Okay, so this is our RC, and here we have two resistances, R1, and we have R2, and here one more resistance we have, RE. Okay, and we are putting one capacitors here, so that we should get, okay, AC, full AC signal, okay, without the impurities of DC. Okay, and here we are applying input. This is my input voltage, and here also we have capacitor. Okay, and this is my ground. With respect to ground, I'm applying some small signal. Okay, and output is taken here. Here we have VCC, and output I am taking across, okay, across RC. Okay, sorry, across this collector C. This is my base. Okay, this is base. This is the base terminal. This is emitter terminal. So across this collector and earth, okay, I'm taking my output voltage. V naught. Okay, and here we have also capacitor to get voltages. Okay, now the first step, okay, as we know, if you want to do AC analysis, okay, so in order to do AC analysis, we have to make DC sources zero. We have to make DC sources zero, and we have to replace these capacitor by a short circuit. Okay, capacitor will be short circuit for AC. So if you want to make a small signal equivalent circuit, small signal equivalent circuit, then we need to modify this circuit. Okay, so I will remove this capacitor and it will be replaced by a short circuit. This is the first step. Second step, okay, I have to make this sources zero, so this will be grounded. Okay, now this is also grounded. Okay, so this terminal grounded. Okay, so that means these resistances are parallel. Okay, they are connected by one end, other end is grounded. Okay, both have grounded. Okay, that means these resistances are collected parallel. Okay, so this is my resistance R1 and resistance R2. Okay, and I have to replace this capacitor by short circuit. जैसे इसको शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस करूंगा, ये रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा. ओके, दैट्स द डिफरेंस. ओके, सो ये रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा. और अभी वोल्टेज, अभी मैं आउटपुट कलेक्टर पे ले रहा हूँ. समटाइम वी टेक आउटपुट एट एमीटर, उस समय कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी हम देखेंगे. ओके, सो नाउ दिस इज वी आर टेकिंग एंड दिस इज आल्सो शॉर्ट सर्किट. सो दिस इज सी. नाउ this one end of a resistance RC is on collector and other is grounded. Okay, so we can replace this one. Okay, one end is here and other is grounded. So ये भी यहाँ पर आ जाएगा. और अगर यहाँ पर अगर वोल्टेज को मुझे R0 पे लेना है, एक रेजिस्टेंस और ऐड कर सकते हैं, R0. if you are taking voltage across R0, then I can add one more resistance parallel to this one, that is R0. Okay, this is NPN transistor. Okay, so current is coming here. बीटा. हाँ हाँ सर, ये R0 मतलब ये R0 तो हम
एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम, चाहे तो उसको हटा सकते, चाहे तो ओपन सर्किट ले लें, उस केस में आर नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कि इनको आर एल की वैल्यू दे दी है, कुछ दे दी है, कुछ वैल्यू दे दिया है, देन वी विल टेक आउटपुट ऑन दिस आर नॉट। ओके, एक एक्स्ट्रा चाहो तो उसको हटा दो तो ये आर नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन में जब करेंगे ना अप्रोक्सीमेशन, तो इसको इनफाइनाइट ले लेंगे तो इसका 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 यूज खत्म हो जाएगा, ओपन है तो अगर। ठीक है, और सर ये स्मॉल सिग्नल के लिए कैपेसिटर से क्यों शॉर्ट हो रहा है? कैपेसिटर तो एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है ना, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंपेडेंस ओ होता ही हाँ नहीं, हाँ। उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए। ओके, नाउ दिस इज ओके। नाउ उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद ट्रांजिस्टर को हमको मॉडिफाई चेंज करना है स्मॉल सिग्नल से, आरई मॉडल जो मैंने उसमें बताया था। ओके, सो आरई मॉडल क्या है, आरई मॉडल क्या है, दिस जंक्शन बी एंड बी, दिस बी एंड ई, okay, this will be replaced by diode, and for AC diode we can replace by a resistance. Okay, so this will be replaced by a resistance. Okay, that is beta re. Okay, beta re, actually it is re. Okay, but since we are ib is coming here, and through here ie coming. Okay, ie coming, so what we are saying that now it is ib is flowing here, and we have multiplied resistance by beta. Okay, so now if you want you can replace this also, you can make short circuit or as a run to, कोई दिक्कत नहीं इसमें। Okay, this is my beta ib. ओके, सो आप समझ लो, या तो इसमें आईबी फ्लो कर रहा है या आई फ्लो कर रहा है, एक ही बात है, बीटा आईबी फ्लो कर रहा है, बीटा आईबी प्लस आईबी, दैट इज आई। ओके, इसमें सो यू कैन सी एनी अदर वे, इसको आर ही मानो, देन टू मल्टीप्लाई बाय बीटा आरबी। ओके, सो दिस इज आवर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, and here beta ib current is flowing. Okay, so through rc I naught current was coming initially when we draw a circuit here. Okay, so this was our rc. Okay, so here our I naught current is coming. If there is no resistance, this I naught will be IC equal to beta IB. If resistance is there, then the current will divide. Okay, so this is our small signal common emitter configuration circuit. अभी मिटाइएगा, Yes, क्या बोलिए? रब मत कीजिए। I didn't get, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? हेलो हाँ बोलिए। सर, आप रब मत कीजिएगा उसको। हाँ, रब नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, रब नहीं कर रहे हैं। ओके, so this is beta IB and beta RE coming, and this is our grounded. Now लेफ्ट साइड वाला इनपुट का इक्विवेलेंस है और राइट साइड वाला आउटपुट का ना। yes, okay. ओके सर। Now we have to calculate the definition. We have given 4 parameters: input impedance, okay, input impedance, output impedance. So now what we can do, this R1 R2, okay, they are parallel, so I can put one resistance R dash here. Okay, R1 R2 की जगह पे I can put one resistance R dash which is equal to R1 R2 R1 plus R2. जस्ट फॉर्मूले को सिंपल करने के लिए, जैसे फिक्स बायस में किया था ना हमने, वहां पे खाली एक ही रेजिस्टेंस था, फिक्स बायस में आरबी था, नाउ हियर 2 रेजिस्टेंसेस, तो जस्ट उसी फॉर्मेट में फॉर्मूले को लिखने के लिए आई एम रिप्लेसिंग दिस R1 R2 बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस R dash, okay, which is equivalent of R1 R2. So in simplification, now I am putting here one resistance, okay, R dash. So this is R dash beta RE. Now I want to calculate impedance. Okay, input impedance, output impedance. Okay, so input impedance भी यहाँ पे देखना, यहाँ पर जब कैपेसिटर था नीचे RE पे, तो इसलिए वो शॉर्ट होकर हट गया। अगर वो कैपेसिटर रहता तो चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ओके, अभी तो सिंपल है, आर ही हट गया है अभी, वरना अभी ग्राउंड नहीं होता, अभी ये डायरेक्टली ग्राउंड हो गया, क्योंकि अभी वो सर्किट में सीधा शॉर्ट हो गया था। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये ग्राउंड नहीं होता। ओके, बीच में रेजिस्टेंस होता, देन सो नाउ जेड इनपुट सर तब बीटा आरई एंड आरई सीरीज में होता ना। हाँ होता, वो करेंगे, वो भी केस करेंगे अभी। सो नाउ दिस इज आवर जेड इम्पिडेंस। ओके, क्या हो जाएगा, आर डैश बीटा आर ई पैरेलल, आर डैश पैरेलल बीटा आर ई। ओके, सो
ओके, और उसमें से जो भी बड़ा होगा दैट वो हट जाएगा पैरेलल में, छोटा होगा छोटा छोटा डोमिनेट करेगा। ओके, सो दिस इज, एंड नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट इम्पीडेंस। वो कितना आएगा? आरसी पैरेलल आर और इसको जिसको जीरो कर दो आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए डेफिनेशन क्या है, आउटपुट निकालना, तो वी इनपुट को जीरो करो तो आई बी जीरो हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो बस ये दो ही रह जाएगा। ओके, सो आर नॉट आर सी, and if, like we have done yesterday, if r naught is greater than or equal to 10 rc, okay, then z naught will be simply your rc. Now next parameter is what? voltage gain. Okay, voltage gain, AV. So voltage gain AV. Okay, so V naught क्या हो जाएगा? V naught क्या? Beta IB and into Z output. वेरी गुड। ओके, बीटा आई बी, बिकॉज देखो यहाँ से आई जीरो आ रहा है और इसमें से कुछ करंट आ रहा है, दोनों करंट मिलके आई बी आ रहा है, तो इन दोनों को जो इक्विवेलेंट होगा उससे बीटा आई बी करंट जाएगा। ओके, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर नॉट, ओके, पैरेलल आर सी, और इनके इक्विवेलेंट से बीटा आई बी करंट फ्लो कर रहा है, सो दिस इज बीटा आई बी, दिस इज वी नॉट। ओके, सिमिलरली करंट डिवीजन, यहाँ हमने करंट डिवीजन लगाया है। ओके, करंट डिवीजन से हमने we have written this one formula. Similarly, we can write V input by current division. Okay, now this is I input current is coming here. Okay, so IB current is flowing here. Okay, so IB current is flowing here, तो IB कितना हो जाएगा? या V input डायरेक्टली लिख लो, V input क्या हो जाएगा? V input क्या हो जाएगा यहाँ से? V input यहाँ से क्या हो जाएगा? R dash parallel to beta R. IB into beta RE. Yes sir. सिंपली ना, अभी इसमें तो हमको करंट पता ही है, IB है, Yes sir. ये पता ही है, तो IB करंट फ्लो IB और बीटा RE। ओके, सो AV क्या आ जाएगा आपका? V नॉट, V इनपुट, R0 RC, बीटा IB बीटा RE, बीटा cancel, IB cancel. Okay, so this is R naught RC upon RE. Okay, and similarly we can write if R naught is greater than RC, if R naught is greater than equal to 10 RC, so this is simply माइनस भी आएगा। अभी देखो करंट यहाँ से क्या आ रहा है, करंट यहाँ उल्टा हमारा वोल्टेज ऐसा आ रहा है, करंट उल्टे जैसा, तो माइनस भी आएगा इधर, तो दिस इज V नॉट इज माइनस। ओके, तो माइनस से पता चल रहा है कि कॉमन एमीटर में क्या होता है, आपका सिग्नल क्या है, 180 आउट ऑफ फेज होता है। कॉमन एमीटर सिग्नल में आप जो भी इनपुट सिग्नल लगाओगे वोल्टेज में हमेशा माइनस आ रहा है, दैट मींस इट विल बी आउट ऑफ फेज, सो दिस विल बी RC upon RE. Okay, this is your voltage gain. हाँ बोलिए। एक चीज में डाउट आ रहा है। हाँ सर, वो आपने करंट सोर्स को कैसे डायरेक्टली कनेक्ट किया इसमें बीटा आरई में? हाँ, तो ये वो तो डायरेक्ट कनेक्ट करा है, डायरेक्ट तो कनेक्ट ही होता है, चाहे ये इक्विवेलेंट बनाओ चाहे इसको हटा के ग्राउंड कर दो, भी करंट तो यहाँ पे भी हमने, हमारा रजिस्टेंस तो RE था। यस सर। ठीक है, फिर RE में बीटा IB करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे IE करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करा, बीटा +1 था, इसको बीटा माना, पहले बीटा +1 IB था। ठीक है, उसको पहले बीटा माना हमने, बीटा से 1 से ज्यादा है, फिर हमने माना बीटा IB करंट बोल रहा है, फिर बीटा इधर दे दिया, बीटा IB इधर देने से क्या हो गया, ये IB अब ये यहाँ पे इसमें IB फ्लो कर रहा है। ठीक है, बीटा इसको दे दिया, तो एक्चुअली सर्किट तो यही है। ठीक है, चाहो तो इसको हटा ग्राउंड कर दो, वही एक ही चीज है, वो दोनों एक ही चीज है, दोनों, इसलिए मैंने दोनों सर्किट बनाए थे। ठीक है, आप कोई भी सर्किट यूज करो। जी सर। सर मतलब फर्स्ट स्टेप में पूरे कैपेसिटर्स को शॉर्ट करते हैं, जो हाँ। VCC है उसका ग्राउंड करते हैं, और अगर पैरेलल में जुड़ा है तो उसको भी शॉर्ट करके जो होता हाँ। है आदमी कर हाँ, देता है ना। भी शॉर्ट करोगे, कोई रेजिस्टेंस को शॉर्ट करोगे, कैपेसिटर शॉर्ट करोगे, तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो ही जाएगा ना। हम्म।
ठीक है। और नाउ ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट बना के कर देते हैं। हाँ बस इतना ही करना है, ठीक है। और एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कोई एक चीज पूछ लेगा, इनपुट इम्पीडेंस बता दो, इनपुट बता दो, या वोल्टेज गेन बता दो, तो वो तो एक झटके में तुम सर करंट गेन। करंट गेन करते हैं। सो करंट गेन में क्या करना है हमको, करंट गेन है आई इक्वल टू आई नॉट आई इनपुट। ओके, सो कैसे निकालेंगे आई नॉट, कैसे निकालेंगे आई नॉट, लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन से लगा देंगे, वेरी गुड। सो आई नॉट इसमें आ रहा है, ठीक है। सो आई नॉट इक्वल टू टोटल करंट बीटा आई बी, ओके, और रेजिस्टेंस ऑफ अदर आर जीरो एंड आर जीरो प्लस आर सी, ठीक है। सर R0 नहीं सर, RC से मल्टीप्लाई करें। हाँ सर RC से मल्टीप्लाई करेंगे ना। आरसी में तो आई नॉट फ्लो कर रहा है ना, तो जिसमें फ्लो कर रहा है उसके सामने का रेजिस्टेंस देखते हैं ना। अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो रेजिस्टेंस सामने का और टोटल रेजिस्टेंस, हाँ सामने का रेजिस्टेंस, सॉरी सामने, ऐसा ही तो यस सर। बोल रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, सामने का रेजिस्टेंस, ठीक है, आरसी। सिमिलरली वी कैन राइट आई इनपुट, ओके, सो आई इनपुट की जगह आई बी निकाल लो, ओके, सो आई बी क्या हो जाएगा, आई बी कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें कर रहा है आर ई बीटा में, टोटल करंट है आई इनपुट इनटू सामने का रेजिस्टेंस लेना है आर डैश, ओके, आर डैश प्लस बीटा आर ई, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, सर्किट की जरूरत नहीं है ना, तो मिटा देते हैं इसको। हमको चाहिए आई इनपुट ना, तो आई बी की वैल्यू रख दो इसमें, आई नॉट बीटा आई बी की वैल्यू क्या है, आई इनपुट, तो आई इनपुट इधर चल जाएगा, ओके, आर डैश प्लस बीटा आर ई, ओके, बीटा, और यहाँ पे आर सी तो है ही, आर सी आर नॉट प्लस आर सी, ये आपका गेन हो गया। नाउ यू कैन अप्रोक्सीमेट, ओके, इफ यू वांट टू रिमूव आर नॉट, ओके, ऊपर आर नॉट नहीं था क्या, सर ऊपर इसमें सर आई आउटपुट में आई नॉट में आर नॉट नहीं था क्या, ये तो सही तो लिखा था मैंने, करंट हमारा आरसी में बह रहा है तो सामने का रेजिस्टेंस आर नॉट ही तो लेंगे, ठीक है। हमने जो सर्किट बनाया था उसमें जो करंट है वो आरसी में बह रहा है मेरा आई नॉट, तो सर्किट तो रेजिस्टेंस सामने का आर नॉट लेंगे ना, टोटल करंट रेजिस्टेंस और डिवाइड, बस सही है। सर आउटपुट करंट तो बाहर वाला आउटपुट करंट तो R आउट पे देना पड़ेगा ना सर। भी अगर आपका ये करंट आ रहा है आई, ठीक है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, अगर मुझे I1 लिखना है तो रेजिस्टेंस तो मैं इसका लिखूंगा ना, जैसे आई नॉट लिखना है तो रेजिस्टेंस तो इसका आएगा, करंट डिवीजन से लिख रहा हूँ, ठीक है। सर और हम लोग सर करंट तो I2 नाप रहे हैं ना, हम्म, करंट तो हम लोग IL नाप रहे हैं जो बाहर दूसरे वाले पे R आउट पे। नहीं ये तो हमको पता ही नहीं है इसमें करंट क्या है, इसमें तो बीटा आई बी माइनस आई नॉट करंट है, इसमें तो करंट पता है, इसमें करंट पता ही नहीं है, आउटपुट करंट तो पता है इसमें फ्लो कर रहा है आरसी में, उसमें तो पता ही नहीं क्या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो पता है वही तो निकालेंगे, इसमें तो पता ही नहीं क्या करंट फ्लो कर रहा है, हमको क्या पता है कौन सा, अभी अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं करंट क्या है इसके अंदर, हमको तो ये हम तो करंट डिवीजन लगा, सिंपल करंट डिवीजन लगा रहा है, अभी आउटपुट कुछ निकाल रहा है, आउटपुट तो निकाल लिया था हमने, दोनों को इक्वल मान के, एक इक्वल मान के फिर बीटा आई बी करंट फ्लो कर रहा था, वो आउटपुट तो निकल गया ना, अभी तो सिंपल करंट डिवीजन लगा रहे हैं कि बीटा आई बी करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आई नॉट है और ये आर नॉट है, इसमें तो पता ही नहीं क्या करंट है, तो हमको ये पता करंट है, इस करंट को निकालना है मुझे, तो सही रेजिस्टेंस सामने वाला और टोटल, क्लियर है कि नहीं है। सर हाँ। आउटपुट करंट मतलब तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो करंट जाएगा। अरे आउटपुट करंट आई नॉट है, सर्किट जो ऊपर देखो ना, जो सर्किट बनाया ऊपर, करंट आउटपुट करंट ये आई नॉट है जो ऊपर से आ रहा है, जो आरसी के थ्रू आ रहा है, फिर वो डिवाइड होके कुछ उसमें आर नॉट में जाएगा, कुछ कलेक्टर करंट बन जाएगा। आपका सर्किट क्या था, ये आपका सर्किट था आरसी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका आर नॉट है,
ठीक है, तो यहाँ से आई नॉट करंट आ रहा है, कुछ करंट आ रहा है, जब सिग्नल लगाओगे तो कुछ सिग्नल की वजह से कुछ करंट आएगा। वो करंट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरा आईसी बन जाएगा, बीटा आई बी बन जाएगा, आईसी बन जाएगा, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी। और अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर तो कुछ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आई नॉट है, ठीक है, ये आई नॉट है और ये बीटा आई बी है, जो जा रहा है सिग्नल नीचे जा रहा है, आई नॉट है, ये बीटा आई बी है। ओके, और ये पता नहीं हमको, ठीक है, ये तो हमको पता नहीं हमको अभी तक, हमको तो ये पता है, बस हमको हमारे पास तो ये सर्किट है, ठीक है, ये वाला सर्किट है हमारे पास तो, ठीक है, आरसी और ये आर नॉट, और हमको पता है कि इसके अंदर बीटा आई बी जा रहा है, हमको आईसी यहाँ से पता है, तो बस ये तो पता ही नहीं हमको, तो हम तो इसको मान रहे हैं टोटल करंट है और इसमें से हम निकाल रहे हैं हम लोग। सो क्या आ गया यहाँ से, बीटा this R naught, okay, so if R naught is greater than equal to 10 RC, okay, then your I input will be beta R dash plus beta RE, and this will be RC will be negligible, okay, तो R naught कट जाएगा तो negligible हो जाएगा इस कंपैरिजन में, then this will cancel and you get this, okay. Similarly अगर your R dash is greater than beta RE, okay, in that case what will happen, बीटा आर डैश खाली आर डैश बच जाएगा, आर डैश कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट बीटा, ओके, करंट गेन इज बीटा। Now we will solve one problem. चले आगे, क्लियर है? सर बस वो करंट डिवीजन में डाउट लगता है। करंट डिवीजन तो करंट डिवीजन है अभी तुमको। हाँ, नहीं सर, रूल पता है सर, बस हाँ, जैसे सर ये कह रहा था, हाँ, हम लोग निकाल तो सर करंट आउटपुट वाले रेजिस्टेंस पर है ना, आर आउटपुट। अरे भी हमारा हमको ये करंट निकालना है, अब कहीं पे भी हो हमको ये करंट निकालना है। ओके सर, ठीक है, ये करंट निकालना है। जी अब सर। ये करंट अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यही आपका बीटा आई बन गया, यस सर। जो जा रहा है, ठीक है, अब जा रहा है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस आर नॉट डाल दिया तो कुछ करंट इसमें से माइनस होकर इधर जाएगा, जैसे आई नॉट इधर आ रहा है और कुछ करंट इसमें बीटा आई इसमें जाएगा। अब रेजिस्टेंस को मैं इधर इसको मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया बस, और क्या कर दिया, आरसी कर दिया, ठीक है, और ये आई नॉट जा रहा है तो हमको पता है, अब इसको करंट को उल्टा कर दो, ये इधर आ रहा है बीटा आई नॉट नीचे जा रहा है और यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है, आई डैश कुछ भी बोल दो, ठीक है, हमको निकालना तो आई नॉट है, तो आई नॉट निकालने का तरीका क्या है, सामने का रेजिस्टेंस, टोटल करंट बीटा आई, सामने का रेजिस्टेंस, और ओके सर, मतलब आउटपुट हमारा आरसी वाला करंट है। हाँ हाँ हाँ, आरसी वाला है सर। हाँ, ये सर आर नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स आरसी आया सर। हाँ, तो एआई में जो ये ऊपर में था उसको क्या मतलब, तो ये तो उसका आरसी नेग्लिजिबल हो गया, तो आर नॉट बच गया, फिर आर नॉट ओके सर, कैंसिल हो गया, तो खाली ये बच जाएगा बीटा ओके सर, ओके सर। सर। हाँ, सर तब सर ये आर नॉट रखने का क्या फायदा, जो हम आरसी के ऊपर करंट मेजर कर रहे हैं। क्यों फर्क पड़ेगा ना, वोल्टेज गेन में तो फर्क पड़ेगा ना, वोल्टेज गेन में फॉर्मूला आर नॉट आ रहा नहीं आ रहा, देखो वोल्टेज इसमें भी आर नॉट आ ही रहा है, इफ यू वो ग्रेटर नहीं रहते, छोड़ नहीं रहे हो, तो वोल्टेज गेन के फॉर्मूले में भी आर नॉट आ रहा है और करंट गेन के फॉर्मूले में भी आर नॉट आ रहा है, तो रीडिंग तो फर्क आएगा ही। अगर ग्रेटर नहीं मानेंगे तो इसमें इस प्रॉब्लम में तो है ना, अगर इसको इनफाइनाइट एसी एनालिसिस में आउटपुट करंट हो, आरसी के ऊपर जो करंट है वही आउटपुट करंट। हाँ, वही आउटपुट करंट है, उसी को मैं बोल रहा हूँ आउटपुट करंट है। भी आउटपुट में तो आउटपुट करंट होता है, आईसी आउटपुट करंट होता है, इनपुट करंट क्या आई भी होता है। इसी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये कॉमन एमीटर में जो आपका आईसी है वो तो आउटपुट करंट ही होता है, पर उसको हम आई नॉट बोल रहे हैं क्योंकि वो डिवीजन हो रहा है ना, क्योंकि डिवीजन हो रहा है ना वहां पे अगर सर्किट नहीं लगा रहे हैं तो आपका आईसी आउटपुट करंट आई जीरो इक्वल टू आईसी हो गया। अगर आप सर्किट नहीं लगा रहे हो
ये सिर्फ आरसी है, तो यही आपका आई नॉट या आईबी हो गया। होता है सर्किट लगा रहे हो तो करंट डिवाइड हो गया होगा। अगर ये सर्किट नहीं ठीक है हाँ ठीक है बोलिए। सर। So this is now क्वेश्चन एक। अब वो ऐसे क्वेश्चन 4-5 करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ऐसा इतनी आसान नहीं है, मतलब बताने में तो आसान है, चलो मैंने बता दिया लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी कहीं भी सर्किट जोड़ देंगे, तो इसको अच्छे से करना है, टाइम लगाया करना है इसको। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया तो एग्जाम में कर ही लेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं होते हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि ऐसा करते हैं इस सर्किट में, ये ऐसा करते हैं, ये इसमें ऐसा करते हैं, ठीक है। सो दिस इज R1 R2 8.2 किलो ओम, 56 किलो ओम, 6.8 किलो ओम, V नॉट बीटा 90, दिस इज 1.5 किलो ओम, ओके। और इसके अक्रॉस मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, तो से तो सिंपल सर्किट हो गया 6.8 एंड VCC इज 22 वोल्ट्स। तो ये 56 है R1, 8.2 किलो ओम, 6.8 किलो ओम इज RC, ओके, एंड दिस इज RE इज 1.5 किलो ओम, बीटा 90 है, तो RE तो अपना हमारा हट ही जाएगा, ठीक है। RE तो हमारा हट ही जाएगा इसमें, क्योंकि ये शॉर्ट जैसे AC सिग्नल लगाएंगे तो पहले डीसी एनालिसिस कर दो, डीसी एनालिसिस के लिए ओपन हो जाएगा, डीसी एनालिसिस के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डीसी एनालिसिस करके RE निकाल लो। तो डीसी एनालिसिस कैसे करते हो वोल्टेज डिवाइडर का? सर जितना भी कैपेसिटर है उसको शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कर देते हैं, हाँ और डीसी वालों को सर लगाए रहते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है, करो। यहाँ आई नॉट है, अब तो यहाँ तो सर्किट हमने डीसी कर रहे हैं, तो ये आईसी आई नॉट लिखो, आईसी हो जाएगा जो भी है, सर्किट तो करंट जा ही नहीं रहा इधर, और ओपन कर दिया इसको, तो ये आईसी हो गया आपका, ये आपका आई है। VTH आ जाएगा 13.07 वोल्ट। हाँ, या तो उसको वोल्टेज डिवाइडर से कर लो, या थेवेनिन से कर लो, जैसे भी तुम करना है कर लो। अप्रोक्सीमेट करना है तो मुझे चाहिए वोल्टेज यहाँ VB का, ओके। मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए ना, तो अगर मुझे VB पता चल गया, if I know VB then I can calculate VE, okay। VE क्या होता है, VE is equal to VB minus VBE, okay। VB minus 0.7, once I know VE, यहाँ का VE पता चल गया अब मिनट पे, then I can calculate IE, IE equal to VE upon RE, okay। सर VB 2.8 वोल्ट। सो मेरा VB आ रहा है R2 upon R1 plus R2 VCC, okay। So this is 8.2 kilo ohm, 64.2 kilo ohm into 22, so ये आ रहा है 2.81 वोल्ट। VThevenin से भी कर सकते हो, VThevenin से ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। 2.81 वोल्ट आ रहा है, एंड देन VE मेरा आ रहा है 2.11 वोल्ट्स, ओके। And then IE is coming VE upon RE, okay, 2.11 volt, 1.5 kilo ohm. This will give me 1.41 milliampere. भी स्मॉल सिग्नल के सर्किट बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको बोला था बॉल सेट की बुक फॉलो करनी है, क्योंकि सारे अगर हम क्लास में करने लग गए तो 6-7 क्लास तो इसी में लग जाएगा हमको, तो तरीका यही है सबका, ठीक है। 85.5 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। हाँ IB IE और IB IB क्यों चाहिए हमको? हाँ IB में निकाला नहीं, तुम IB करके निकालो, तुम फाइनल निकालो, तुम फाइनल जो जिस तरीके से कर रहे हो तुम अपना निकालो, IE कितना आ रहा है तुम्हारा, IB निकालो, फिर IC निकालो, ठीक है, और IE निकालो, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ IE, वो भी तरीका तुम करो, आंसर मैच भी हो जाएगा।
सर यहाँ पर ईटा क्या, बीटा ईटा ईटा सर। ईटा किसके लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ओह नो सर, ठीक है सर। आर ई का तो फॉर्मूला सीधा ही है ना, 26 मिलीवोल्ट अपॉन आई। हाँ सर, उसमें ईटा हम वन 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 ले रहे हैं, वन सब में वन ही ले रहे हैं हम लोग। और ये मेरा आ रहा है गड़बड़ आ रहा है सर थोड़ा सा। 18.44। अब तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुम भूल गए हो जो क्वेश्चन नहीं पहले सर। कर रहे थे। ठीक है, वो लगता है आसान है, लेकिन ये करोगे नहीं तो फिर भूल ही जाते हैं। 3 दिन में गैप हो गया, 3-4 दिन का। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी चीजें गैप करने के बाद में चीजें अजीब सी लगती हैं। वापिस करो, मैं तुम्हारे तरीके से भी करता हूँ। तो वी थेवेनिन कितना आ रहा है तुम्हारा? वी थेवेनिन कितना आ रहा है? सर VThevenin आ रहा है 13.072 वोल्ट। 13.07। 072 ओके, आर थेवेनिन 3.33 किलो। 3.33 किलो। पता नहीं सही है कि नहीं है। अब देखो, वी थेवेनिन, ओके, आर थेवेनिन आ रहा है आपका 3.33 किलो ओम। ओके, सो अब कैसे निकालोगे इसको? हाँ सर, इनपुट का एनालिसिस कर लेते सर। हाँ हाँ, कैसे करो, करके दिखाओ। 3.3 सर ये कितना है? 8 पॉइंट। VTL माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई ओके, सो माइनस 13 पॉइंट। अच्छा, कितना आई बी कितना आ रहा है? आई बी IB वी इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस 0.7, 3.33। ओके, एंड दिस बीटा इज प्लस 1 इंटू प्लस 1.5 वन। हाँ 1.5 किलो ओम। सर इंटू 91 भी होगा ना, क्योंकि आई बह हाँ रहा है। बीटा, हम बीटा 91। ठीक है, ठीक है, करो। 13 ये कितना आ रहा है? बी थेवेनिन माइनस 13 में कितना आ रहा है? बी थेवेनिन माइनस 0.7 कितना आ रहा है? 12.372। कितना? 12.372। 372 ओके, 2, ओके जो भी है। और ये हो गया 1.5 इंटू 91 कितना हो जाएगा? 90, ये फुल 135 ये 138। ये आ रहा है क्या? 138 पॉइंट समथिंग, 139 कितना आ रहा है? ये तो 91 है ना, तो 90 प्लस 45 46 आएगा, कुछ आएगा ऐसा कुछ करके 139 का आसपास आएगा। अब करके देखो। हाँ हाँ सर, 139.8। 139.8 डिवाइड कर लो इसको, कितना आ रहा है? 85.5 माइक्रो एम्पियर। 85.5 माइक्रो एम्पियर। यस सर। और इसको कर दो मल्टीप्लाई, आई निकालने के लिए 91 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, 90 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 7.78 आ जा रहा है। ये कितना आएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है इसका मतलब, आएगा तो उसी तरीके से। ठीक है, चलो तुम चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। अभी तो नहीं चेक कर पाएंगे इधर, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अभी तो। करो तुम भी चेक करो, मैं भी करता हूँ। ठीक है, आएगा तो वही सेम ही आना चाहिए, हाँ सर। दोनों मेथड तो सेम ही है। कुछ जरा ज्यादा आंसर में जरा सा फर्क आएगा। क्लास के बाद मैं भी करता हूँ चेक, तुम भी करो। ठीक है, जी सर। सो अब क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है आर डैश। हमको चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस जेड आई। ओके, दैट इज आर डैश बीटा आर ई। ओके, सो आर डैश कितना आ रहा है? सर ZI की वैल्यू 7.034 आ रही है। और RTH के इक्वल आएगा। नहीं, कि आर डैश कितना तुम्हारा? आर डैश कितना आ रहा है? मेरा आर डैश आ रहा है 56 किलो ओम। 56 किलो ओम पैरेलल टू 8.2 किलो ओम। हाँ सर, ये 56 किलो ओम था क्या? मैंने 5.6 लिखा सर था। ये 56 था। 7.15 आएगा। हाँ 7.1 आएगा। हाँ ये सर 56। जेड आई कितना आ रहा है? 7.034। जेड आई आएगा 1.35। कैसा आएगा? 90 से मल्टीप्लाई करोगे, बीटा आ रही है ना,
बीटा आरई से मल्टीप्लाई करना 90 से मल्टीप्लाई होगा, आरई की वैल्यू 18.44 है ना? हाँ ओम थी ना, तो 7.1 जो मेरा मैं डॉट प्लॉट लिख रहा हूँ जेड आई इक्वल टू आर डैश पैरेलल बीटा आर ई, ओके। आर डैश तुम सही बोल रहे हो 7.15 किलो ओम है, ठीक है, और पैरेलल टू बीटा, तो बीटा कितना है 18.44 और बीटा है आपका 90, तो ये हो गया 7.15 किलो ओम और इसके पैरेलल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1.66 किलो ओम। नहीं आ रहा क्या? तो जो भी आएगा इससे छोटा ही आएगा सर पैरेलल है तो। आपने उसको किलो ओम में चेंज कर दिया, ठीक है हाँ सर। हाँ जो भी है, अच्छा और 1.32 हाँ अच्छा लास्ट में आंसर तो किलो में बोलोगे ना, 1.35 किलो ओम, हाँ 32 जो भी इसी के आसपास आएगा। मेरा 1.35 किलो ओम आ रहा है, 1.34 आएगा, मैंने 1.35 कर दिया 1.34। 1667 ओम के समथिंग आ रहा था। हाँ तुम्हारा अच्छा, हाँ तो किलो ओम कर दो ना उसको, भी किलो ओम है ना, यूनिट तो सेम ही रखोगे, यहाँ ओम करो यहाँ पे ओम करो यस फिर, सर। हाँ सर ठीक है सर। ऐसी सर कैलकुलेशन। अब ठीक है सर। हाँ जेड नॉट यहाँ 1.347 समथिंग आएगा, मैंने 1.3 दिया, ठीक है। जेड नॉट कितना आ रहा है, जेड नॉट कितना है इस क्वेश्चन में? सर वही सर आरसी के इक्वल हो जाएगा। हाँ 6.8 के इक्वल किलो। इक्वल 6 पॉइंट किलो हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एंड देन वोल्टेज गेन ए वी, फॉर्मूला क्या है, आर सी अपॉन आर ई 8 अपॉन आर, हाँ सर। माइनस का, मेरा आ रहा है ये 368.76। सर ये एसी एनालिसिस कर रहा है ना? फॉर्मूला तो अभी कराया था ना वोल्टेज डिवाइडर का, और करंट गेन का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, करंट गेन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो बीटा के इक्वल आ गया था वैसे वो, जब बीटा क्या अप्रोक्सीमेशन हमने लिया था। अप्रोक्सीमेशन सारा, अभी यहाँ अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे खाली आर नॉट इनफाइनाइट है, बाकी क्या अप्रोक्सीमेशन है, बाकी तो कुछ अप्रोक्सीमेशन है ही नहीं यहाँ पे। बीटा आ रही हाँ बीटा, क्योंकि आपका जो अभी आर डैश आ रहा है वो कितना आ रहा था अभी 7.15 आ रहा था, और उसके यस बाद सर। में आपको जो आर ई आ रहा था 1.66 किलो आ रहा था, बीटा आ रही 1.6 किलो आ रहा था, तो नेग्लिजिबल तो नहीं है ना। हाँ सर। तो खाली आर नॉट इनफाइनाइट है, तो आर नॉट वाला अप्रोक्सीमेशन लेंगे, खाली एक दो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, एक ही अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो क्या आएगा फॉर्मूला? बीटा आर डैश अपॉन आर डैश प्लस बीटा आर ई। बस यही आएगा फॉर्मूला। जो डेरिवेशन किया था उसमें दोनों अप्रोक्सीमेशन लिए थे, यहाँ पे एक ही लेंगे बस। बताओ कितना आ रहा आंसर? हाँ सर, आर डैश का कितना आया था वैल्यू? आर आर इसका 7.15 किलो ओम, 7.15, और बीटा आ रही 1.66 किलो ओम। 73.54। 73.04 है जो भी है, 73 आएगा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 73, 54 होगा शायद। कितना आ रहा है? 73 तो आ रहा है ना, 73 पर समथिंग आ रहा है, हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। सो दिस वाज वोल्टेज डिवाइडर, ओके। तो अभी तक तो जो हमने फिक्स्ड बायस किया, वोल्टेज डिवाइडर किया, वो ऑलमोस्ट एकदम सेम ही चल रहा था, ओके। अब एक केस बता देता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे केस में भी वही चलता रहेगा। तो ना है वी हैव अमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, अमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन,
So we have RC, नाम इसको अलग बुक में अलग दे रखा होगा, RB, we have capacitor, we have V input, RE, and then RC, C2, C1, V0, okay, and then we have VCC. So इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर इसको बाईपास कर रहा था, कर दे रहा था, ओके. नाउ दिस इज अनबायस्ड. सो अभी थोड़ा सा, अब इसको अगर मुझे AC इक्विवेलेंट बनाना है, AC इक्विवेलेंट बनाना है इसका, ठीक है. तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दियो, ठीक है. इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करते ही ये ग्राउंड हो गया, ठीक है. तो अब ये रेजिस्टेंस बेस से कनेक्टेड है प्लस ग्राउंडेड है, तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वैसे जो है उसी को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. RB, ठीक है. C हमारा हट गया, RC C से कनेक्टेड है, ये डालना जरूरी है टर्मिनल्स, ये C है, ये E है, ताकि करने में दिक्कत ना हो. अब RC C से कनेक्टेड है प्लस यहाँ पे ग्राउंडेड है, इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ आ गया, RC आ गया, ठीक है. और अब की मैं R0 दे नहीं रहा हूँ इसमें क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर. और V0 आ गया. अब क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है इसका इक्विवेलेंट, ओके. सो इक्विवेलेंट में क्या आएगा आपका, एक तो आपका बीटा RE, ओके, एंड देन यहां से आपका आ रहा है जो भी करंट आ रहा है आपका I, ओके, बीटा I भी करंट आ रहा है. सर आपने कैपेसिटर शॉर्ट किया था और ये VCC ग्राउंड किया था ना सर? हाँ, ओके. सो बीटा I भी करंट इस पर कमिंग. अभी इन दो करंट मिलके यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना करंट आएगा, बीटा IB प्लस यहाँ से IB आ रहा है, यहाँ पे कितना करंट आएगा, IB plus beta IB. IB प्लस बीटा IB, वापस I हो गया, ठीक है. Yes sir. तो इस रेजिस्टेंस को मैं बीटा कर देता हूँ और क्या, बात खत्म हो गई. इसको बट अब यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे भी IB आ रहा है, यहाँ पे भी IB करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. बीटा IB आ रहा था, बीटा प्लस 1 IB आ रहा था, बीटा प्लस 1 कर दो, बीटा प्लस 1 RE कर दिया इसको मैंने. तो अब ये करंट IB इसमें आ रहा है मिक्स होके. सर हाँ, ये क्या किए एक बार फिर से बता देंगे सर? भी यहाँ पर अपना जैसे पहले किया था, यहाँ पे कितना है, RE आ रहा है, यहाँ RE आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ से IB करंट इसमें आ रहा है, ठीक है. और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे IB करंट यहाँ से आएगा, बीटा IB यहाँ से आएगा, तो बीटा प्लस 1 IB करंट आएगा इसमें IE करंट आएगा. कहने का मतलब यहाँ पे IE करंट आएगा, IE इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB होता है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, अब ऐसा लिखूं या इस रेजिस्टेंस को बोल दूं बीटा प्लस 1 RE है और करंट IB है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली बस देखने का नजरिया अलग है. यहाँ पे ये क्या RE है, ठीक है. यहाँ पे इसमें करंट क्या है, IE है, IE इज बीटा प्लस 1 IB, तो मैं IB को अलग रख देता हूँ, बीटा प्लस 1 को RE से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, बीटा प्लस 1 RE हो गया और करंट मेरा IB हो गया. मतलब आपने I की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. हाँ, I की वैल्यू को फॉर्मूले से रिप्लेस कर. हाँ बस, हाँ ठीक है. और कुछ चेंज नहीं करना है. अभी इनपुट का जैसे अगर मैं अब देखो, ये दोनों, इसमें भी IB करंट है, इसमें भी IB करंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों सीरीज में हो गए, सेम करंट है ना, ठीक है. सेम करंट है तो इसको बोलते हैं ZB और ये RB. तो हमारा जो अब की जो ZB हो जाएगा, ZB इज माय बीटा RE प्लस बीटा प्लस 1 RE, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा. और बीटा 1 को छोड़ दूंगा तो बीटा RE प्लस RE, पहले बीटा RE लिख रहे थे, आप RE स्मॉल प्लस RE कैपिटल लिखेंगे बस फॉर्मूले में, तो ये आपका ZB हो जाएगा, ओके. और आपको जैसे इनपुट इम्पीडेंस चाहिए,
भी ये इतना लगता है आसान, इतना आसान है नहीं है, थोड़ा एक दो बार करना पड़ेगा, आपको बैठ के करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग में मेमोरी जाएगा, थोड़ा एग्जाम में याद भी रखना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा करना है। वो जब तक पूरा प्रैक्टिस में हो जाए तो गलती तो होगी उसमें करने में, ठीक है। तो जेड आई इज नाउ आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई प्लस आर ई, ठीक है। सो करेक्ट, आर बी प्लस जेड बी, ओके, कहने का मतलब है कि आर बी पैरेलल टू जेड बी। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है गेट में आपके फिजिक्स में भी आया है, वो भी करते हैं अभी। तो ये हो गया बीटा आर बी प्लस जेड बी, तो इनपुट हो गया। आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है इस पे फटाफट बताओ। RC आउटपुट था आर सी है, ठीक है। बी आउटपुट कितना है, बीटा आई बी आर सी। वेरी गुड, माइनस करके ये प्लस माइनस बीटा आई बी आर सी। वी इनपुट कितना है, आई बी आर IB into ZB आई, वेरी गुड, आई बी इंटू जेड बी। सो आई बी इंटू जेड बी। तो सर ये ZI क्या लिया सर, ZI क्या लिया? जेड आई RB पैरेलल टू, टू जेड बी, इन दोनों को जेड बी, अच्छा इन दोनों को जेड बी बोल दिया, इन दोनों को अच्छा बीटा ये दोनों, बीटा आर ई प्लस आर ई को। ओके सर। वी नॉट आपका ए वी कितना आ जाएगा, माइनस RC अपॉन RE प्लस RE। माइनस बीटा आर सी जेड बी है, जेड बी। सो माइनस बीटा आर सी बीटा आर ई प्लस आर ई कैंसिल हो गया, तो माइनस आर सी आर ई प्लस आर ई, ओके। और इसमें भी अप्रोक्सीमेशन होता है क्योंकि आर ई जनरली बहुत बड़ा होता है, 10 आर ई, ओके। तो नीचे आर ई ही रहता है खाली इसमें, इसी पे क्वेश्चन भी आया आपका एग्जाम में, ए वी सो माइनस आर सी अपॉन आर ई। हाँ सर, हम्म, सर एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, जो इनपुट पे हम लोग स्मॉल IB into ZB लिखते हैं सर, हम्म, तो सर जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं AV की, तो कैपिटल IB और स्मॉल IB को कैंसिल कर देते हैं। कहाँ पे ये वाला, यस यस ये स्मॉल ही, सब एक ही, एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है ओके ओके नोटेशन में। तो मैं तो ऊपर नीचे देख रहा हूँ, आईबी तो आईबी है, यही तो करंट आ जी रहा है सर। इधर, यही करंट तो आ हाँ रहा है सर। इधर, तो यही तो वोल्टेज है, ये वी इनपुट यही तो है, ये वी यस इनपुट सर। क्या है आपका, यही तो है, जेड बी आई बी जेड बी। सर AV वोल्टेज गेन है ना, हाँ हाँ PI अपॉन हाँ P एवी नॉट, वोल्ट, हाँ वोल्टेज गेन है, ओके सर। और फिर इधर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, हाँ फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, ओके सर। ठीक है। सर ये तो पहले वाले जैसा ही है सर। सब पहले सब एक जैसा ही है, खाली यहाँ पे रेजिस्टेंस है बस, अच्छा बस थोड़ा सा जेड भी आ गया है। भी पहला जो सबसे पहला केस किया था उसमें खाली आरबी था, आरबी और बीटा हाँ, आरई था, सेकंड केस में दो रेजिस्टेंस आ गया, आर1 आर2 आ गया, ठीक है। आर1 यस आर2 को सर। हमने आरबी का आर कर दिया था ताकि फॉर्मूला सेम ही रहे दिखने में। हम्म, अब क्या आ गया, अब आरबी फिर एक ही रेजिस्टेंस आ, पहले फर्स्ट केस आ गया था आरबी आ गया है, यहाँ पे क्या बीटा आर की जगह बीटा आरई की जगह से बीटा आरई प्लस आरई आ गया है, ठीक है। वो ओके सब 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 उसी ऑर्डर में चल रहा है, सब सेम ही है। अब खाली अब करंट गेन निकाल लो, करंट गेन कैसे निकालेंगे बताओ, पहले बताओ आईबी कितना है इसमें, तो VI अपॉन RB पैरेलल टू ZB। तो टोटल करंट आई इनपुट लिखना पड़ेगा ना, यस सर। आई इनपुट टोटल करंट इनटू आरबी आरबी बाई आरबी प्लस जेड बी, ठीक है। और ये तो हो गया आपका आई इनपुट का, ठीक है। और क्या चाहिए आपको इसमें, आई आई आउटपुट क्या चाहिए आपको, और आई आउटपुट कितना आएगा, V आउटपुट अपॉन RC।
माइनस बीटा आईवी, भी ये बीटा आईवी। ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये बीटा आई भी था खाली ये, ठीक है। यस आई सर। बीटा आई भी आ गया बस, माइनस नहीं आएगा, वोल्टेज से माइनस आता है, करंट तो करंट है, जी सर। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ी करंट करंट तो एक ही है, करंट तो करंट है, ठीक है। सो बीटा आई भी निकाल लो बस, ए आई कितना आ रहा है आपका, बीटा आर बी, ओके, आर बी प्लस जेड बी। सर आईबी क्या है सर? अच्छा, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है ना? ये करंट कर रहे हैं ना, तो ये वही Yes, वोल्टेज sir. वोल्टेज डिवीजन लगा दिया, टोटल करंट आई आई इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज आई बी, दैट इज सामने वाला रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, करंट डिवीजन। सर तो बीटा प्लस 1 आई आर ई आई आर बी है ना? ना जेड भी लिखा है ना उसकी जगह, इन दोनों के लिए जेड भी लिखा है, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस बना रही या बीटा आर ई, ओके सर। ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तुम ए आई का, जो पहले बताया था मैंने एक बार, माइनस ए वी जेड इनपुट जेड अपन आर सी, ऐसा भी निकाल सकते हो अगर इससे नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका गेट 2017 में, इसको 2-3 बार करो, टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया तो हो गया। जो सिंपल 4-5 सेकंड कराएंगे उसको, 2-3 घंटे बैठ के देखो उसको, बार बार ट्राई करो, उसके क्वेश्चंस भी करो उसके बहुत सेट की बुक से, तब एक बार तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी इससे। यही टफ है, इसे बाकी तो आसान है कहीं थोड़ा सा। सो नाउ वी हैव, सर इस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? अभी तक तो एग्जाम में एक बार ही क्वेश्चन आया है गेट का, मुझे दिखा है गेट का 2017 का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया आज तक तो, ठीक है। अभी आगे आएगा कि नहीं आएगा, अभी नेट के पेपर में देखूंगा मैं, गेट में मुझे एक ही दिखा है। ये सीख गए तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के बराबर आ गए, फिजिक्स के स्टूडेंट थोड़ी करते हैं सब चीजें, इतना थोड़ी करते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो गेट वगैरह पे कर रहे होते हैं, उनके बराबर स्किल आ जाएगी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, एटलीस्ट डिवाइसेस में तो। सर समझ में तो मतलब सब आ रहा है सर, बट हाँ, मतलब जैसा क्वेश्चंस में ना थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्वेश्चंस तो और सिंपल आएंगे, क्वेश्चन में तो और कम और आसान होगा, क्वेश्चन में तो और सिंपल आएगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक फैमिलिटी नहीं आएगी, अब नई चीज सबको अट्टी लगती है ना, जब तक तुम अब इस पर टाइम, जितना टाइम दोगे उतना फैमिलिटी बढ़ेगा तब तो हर चीज आसान लगेगी, टाइम तो देना ही पड़ेगा इक्वलेंट। इस पर टाइम नहीं दोगे तो फिर, ये तो आसान सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर टाइम तो देना ही चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है सब्जेक्ट ये। एक बार आपको कमांड हो गया ना, तो एग्जाम में इसको लाइफ में कभी रिवीजन में टाइम लगेगा ही नहीं, 5-6 घंटे में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कर लोगे, एक बार टाइम देके पढ़ लिया, फिर कभी भूलने वाली चीज ही नहीं है ना, रिवाइज ही फटाफट होता है सब्जेक्ट। तो ये एग्जाम नहीं है नेट गेट का, बाद में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक का रिवीजन बड़ा फटाफट होता है, टाइम लगता ही नहीं इसमें रिवीजन करने में, इसमें क्योंकि ज्यादा है नहीं, ठीक है। सो R1 दे रखा है 10 किलो ओम, R2 दे रखा है 10 किलो ओम, R3 दे रखा है 1 किलो ओम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे V इनपुट दे दिया है, इनपुट इम्पिडेंस of the amplifier looking into the base for
small AC signal, for small AC signal is in किलो ओम, ओके। और V आउटपुट निकाल रहा है यहाँ पर, तो हमको तो खाली ये पूछा है कि आप निकालो, इनपुट निकालो, इनपुट इम्पीडेंस कितना है, इतना पूछा है। सर और VCC की और इनपुट इम्पीडेंस में भी ये पूछा है, वैल्यू नहीं, बीसी जरूरत नहीं है, खाली इनपुट इम्पीडेंस पूछा है इसी सिग्नल के लिए। और उसमें बोल दिया है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, पीएन जंक्शन वाला, अमीटर जंक्शन वाला, इस जंक्शन का जो रेजिस्टेंस हम बीटा आर ले रहे थे, उसको भी Yes, छोड़ sir. दो, उसको भी नेग्लिजिबल कर दो, उसको भी नेग्लिजिबल कर दो। तब बताओ कि इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस कैसा है। तो पहले तो हम इसका एसी इक्विवेलेंट बना लेते हैं, एसी इक्विवेलेंट। सर हाँ। मेरा कनेक्शन चला गया था सर, एक बार हाँ। फिर से रिपीट कर देंगे सर। ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें R1 दे रखा है 10 किलो ओम दे रखा है, R2 10 किलो ओम दे रखा है, ठीक है, और R3 दे रखा है 1 किलो ओम दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि स्मॉल सिग्नल के लिए ZI कितना है, इस केस में इनपुट इम्पीडेंस कितना है, और उसमें भी ये वाला रेजिस्टेंस है, जंक्शन वाला रेजिस्टेंस है, बेस टू कलेक्टर, भाई बेस टू अमीटर, उसको एमीटर। उसको उसको नेग्लिजिबल मान लो। दैट मींस RE को नेग्लिजिबल मानना है। RE वैसे भी अच्छा नेग्लिजिबल, सर, हाँ बीटा हाँ। की वैल्यू नहीं दिया। बेटा कुछ दिया नहीं आपको, निकालना क्यों, आपको आपका रेजिस्टेंस निकालना है, ये बस इनपुट इम्पीडेंस निकालना है, 5 किलो। जी सर। ठीक है। तो कैसे, पहले तो बना लो इसका सर्किट बना लो। सर्किट कैसे बनेगा इसका, बी इनपुट का, बी ये तो R1 आ जाएगा इधर, ठीक है, और R2 आ जाएगा इधर, ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ से R3 आ जाएगा, वीसीसी ग्राउंड किए थे ना सर? R3, हाँ ग्राउंड करके ये R3 आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर का बीटा आगे तो कुछ है ही नहीं है, और R3 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IE, ओके। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से सिग्नल जो आपका है बीटा, या आउटपुट वाला इक्विवेलेंस बना रहा है सर? हाँ बस वो करंट आ गया यहाँ से, ये हमको तो, हाँ हाँ जो रेजिस्टेंस होगा वही हाँ, तो ये IB आ रहा है, R1 पैरेलल। तो तीनों पैरेलल हो गए बस, और क्या बस। हाँ सर वही ZI है। हाँ, Z इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3, ठीक है। सो 10 किलो ओम पैरेलल टू 10 किलो ओम पैरेलल टू 1 किलो ओम, कितना आ रहा बताओ। तो 5/6। 5/6 कहाँ से आएगा, निकाल अच्छे से। 10 10 10 10 का तो 10 10 का तो 5 हो जाएगा, 10 5। सर और 5 का 6.5 कितना आएगा, हाँ कितना आ रहा है बताओ। 0.833। मेरा तो 4.76 आ रहा है, तुम लोगों का पता नहीं कैसे आ रहा है। सर ZI मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना? इनपुट इम्पीडेंस यार, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, वही फिर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ। पहले यहाँ पे बीटा आर आता था, हाँ बोलो। पहले क्या लिखते थे, आरबी, तो यहाँ पे आरबी होता था, और यहाँ बीटा बीटा आर प्लस बीटा आर कैपिटल आर होता था, ठीक है। अब Yes, आरबी sir. आरबी जगह पे या आर डैश हो गया, ठीक है, ये दो Yes, रेजिस्टेंस हो sir. गया, और उसमें जो स्मॉल बीटा आ रही है उसको ये बोलना नेग्लिजिबल मान लो, खाली आर ही तो आएगा तो बस, RE बचा, ओके आर ही सर। बच्चा बस। लेकिन सर जो आरबी में करंट जा रहा है, हाँ R3 में जो करंट जा रहा है वो तो हाँ। अभी बीटा IB ही होगा ना। वो बीटा आई बी क्यों आएगा, ठीक है, यहाँ से आई बी आ रहा है, करंट तो आई, जो भी आई करंट तो आई आएगा, आई अभी बीटा हाँ, प्लस, यस बीटा सर वही बीटा प्लस 1 IB बीटा प्लस आई बी यानी बीटा आएगा, IB। यस। नहीं नहीं, आप तो रहने दो ना, आप तो वो तो हम समझने के लिए करते हैं यहाँ पर। रेजिस्टेंस तो कितना है, रेजिस्टेंस तो इतना रहेगा, R3 था सर। हाँ हाँ R3 बोल रहा हूँ मैं, R3 रेजिस्टेंस तो उतना ही लेंगे, वो तो हम लोग सीरीज में करने के लिए बताते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है, निकाल तो इतना ही है। सर R2 में कितना जाएगा करंट, अगर हम्म? निकालना हो तो हम्म? कैसा निकालेंगे? अच्छा R2 सर। में कितना करंट जाएगा? अबे R2 में क्वेश्चन करंट पूछा कहाँ है, मतलब अगर सर पूछा तो कैसा निकालेंगे? तो यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन पूरी कहाँ है, अभी इसमें पूरी इस इन्फॉर्मेशन से कैसा निकलेगा, इसमें इससे IB जा रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा IBR3 हो जाएगा, ठीक यस है, सर, IBR3 हो जाएगा यहाँ पर, तो बस उससे निकाल लो IBR3 अपॉन वोल्टेज, VI।
हाँ अपन अपन जो भी निकालना है वोल्ट अपन R2 निकालोगे तो करंट आ जाएगा, वोल्टेज करंट करो आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 10 इंटू 10 10 इंटू 10 ओके कितना आ जाएगा आपका 5 ओके एंड 5 इंटू 1 6 ये इतना आ रहा है क्या? यस सर 0.83 sir. किलो। बीटा नहीं दे रखा क्या? जस्ट चेक मी। सही बोल रहे हो, यहाँ पे बीटा 99 दे रखा है, ठीक है 99 दे रखा है। उससे करके देखो बीटा 99 से करके देखो, 100 करके देखो इसको, 100 R3 करके देखो, इसको 100 करके देखो क्या आ रहा है। अब कितना आ रहा है? 5 इंटू 100 ओके अपॉन 105। सही है, अब सही है। सर 4.76। हाँ वो सही बोल रहा है लड़का, क्या नाम है उसका, वरुण ना? नहीं सर। हाँ पुनीत सही सही बोल रहा है। ये बीटा प्लस IB है। IB करने के लिए इसको रेजिस्टेंस को बीटा करना पड़ेगा, बीटा प्लस 1 IB। मैंने भी लिखा तो करके दिया है, बीटा प्लस 1 IB। ठीक है यस सर। ओके गुड। तो यहीं पे एंड कर रहे हैं क्लास को। इसके क्वेश्चंस और करो, इसमें इसके बॉल स्प्लिट में क्वेश्चंस सर और भी। ये बीटा प्लस 1 IB से R3 100 हो गया ना, हाँ 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 तो ये वो 9 इक्विवेलेंट निकाल दिया गया हाँ अभी। 99 प्लस 100 हो गया, ठीक है। हाँ, और बीटा का वैल्यू क्या दिया सर? 99 दिया। 99 दिया है। ओके सर। है। तो और सर पहले क्वेश्चंस वाले में क्या प्रॉब्लम आ रहा था सर? पहले वाले में क्या, पहले वाले में तो ऐसे ही किया था। पहले वाले में रेजिस्टेंस जो किया था हमने ZB किया था, वो ऐसे ही तो किया था, बीटा RE प्लस RE तो किया था, उधर सेम ही तो आएगा। सर इसी केस में R3 1 लेके किए थे तो क्या प्रॉब्लम हुआ था? नहीं R3 1 गलत हो गया था ना, क्योंकि हम तो ZB हम जो रेजिस्टेंस निकाल रहे थे पहले भी ऐसे निकाल रहे थे ना, बीटा से अच्छा मल्टीपल तो कर ही रहे थे। अभी अच्छा मैंने गलत अच्छा। कर दिया, यहाँ पे सही किया, मैंने सही किया था, यहाँ पे गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। तो 4.76 किलो में आएगा आंसर। तो इसके क्वेश्चन करो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ और क्वेश्चंस बुक्स ढूंढ रहा हूँ, कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो कराएंगे, और हम बॉल सेट में जो कर रखे हैं वो करो। पर हम जैसे जैसे एग्जाम में खाली एक ही क्वेश्चन पूछा डेड इनपुट है, तो तुमको खाली जो जो वोल्टेज गेन है वो निकालना सीख लो, इनपुट 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 इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन निकालना सीख लो, ठीक है। वो आसानी से निकल जाता है, जो आसानी से निकल जाता है वो एग्जाम में देते हैं, क्योंकि सर्किट तो अभी और कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। अब इतने फॉर्मूले थोड़ी कोई आ सकता है, वो देंगे वही जो जो सिंपलेस्ट हो। तो एक्चुअली सिंपलेस्ट निकालना, हर सर्किट में जितने भी आगे सर्किट आएंगे, हर सर्किट में सिंपलेस्ट चीज निकालना आ गया उतना ही काफी है, क्योंकि अभी तक तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आया आज तक तो कभी। सर तो मतलब वो 3 स्टेप याद रखना पड़ेगा ना, AC के हाँ लिए कैपेसिटर शॉर्ट, जितना VCC जितना ग्राउंड। तुमसे एफर्ट हो पा रहा है, जितना टाइम तुम दे पा रहे हो, जो ज्यादा टाइम दे पा रहा है वो पूरा सीख ले, ये तो मुश्किल थोड़ी ना है। टाइम दोगे 5-6 घंटे दोगे तो सीख जाओगे, और जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है वो एटलीस्ट सिंपल चीजें निकालना तो सीख ही ले, आता सिंपल ही है वोल्टेज गेन, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो जितने भी किए सब सिंपल सर्किट है, सब कुछ निकल जा रहा है। अब आगे थोड़ा थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेट आएगा, जैसे इसी सर्किट में अगर R0 जोड़ देते जो हमने लास्ट किया था, उसमें अगर R0 जोड़ देते तो थोड़ा बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसको सॉल्व करना। ऐसे ही आगे जो सर्किट आएंगे उसमें भी R0 जोड़ दोगे तो कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, उसका फॉर्मूला भी लंबा चौड़ा होगा, तो वो तो वैसे भी आएगा नहीं एग्जाम में। जो सिंपलेस्ट है इसलिए वो चीज तो निकालना सीख ही लो, ट्राई सभी करो करने की, पर जितना याद होगा तो कर लेना उतना, ठीक है। आया भी Yes, एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ आया भी एक ही क्वेश्चन। ओके सर। चलो स्टॉप ओके करो। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म